All of you. So after a long time, once again we have assembled here to attend in-house training program which we have been conducted in our school for several years. Since last 2 or 3 years, we have been conducting this kind of program as it was prescribed by the CBSE. Importance of this in-house training program, as you all know, we also conducted. So it has a great importance to enhance our academic as well as duties to render our best to our students. And for that purpose, in-house training program plays a vital role to fulfill all these requirements. Now, today we have got a nice and excellent, well-conversed, devoted, disciplined, well-educated resource person amongst us. So it's my earnest request to all of you at the time of his sharing her experience, we will be come and quiet, we will note down whatever important points are there will help us in our near future and in our day-to-day classroom activities also. So today's program is going to be share our most evident and educated. Before going to invite and welcome her, I would like to tell you something about her. She is not only famous and skilled, she has joined in Patna. There also she has attended the program, and during COVID period also activities related to CBSE. So let us welcome the most dynamic, the most well-educated, devoted resource person and our respected Madam Mrs. Binaji Pillai with a huge round of applause. Our today's in-house training program, again with a huge round of applause. हम लोग नॉर्मली कैसे क्लैप करते हैं, ऐसे है ना? So keep this, everyone, keep your hands like this, please. Left hand. Then 1, clap, clap. 1, 2, 3, 4, then 5. Yes, 2, 3, 4, and 5. Where, why we are? Science का तो बहुत सारे features हैं. Why we are clapping? What's the need of clapping? Maybe you know. Tell anyone, please. Yes, sir. Yes, sir. To encourage the resource person. Very good, correct. It is the sign of the encouraging. Okay. Persons. Okay, correct. Any science in it? Of course, sir. We have many acupressure points. Yeah. So Yes. while clapping, we are activating all those points. And activating our brain. brain. Okay. So this answer for again one big clap. Clapping में confuse मत कीजिए. Education. Okay. Maybe you all know this topic. What is the meaning of modern education? That is also you know. Okay. Modern education का meaning क्या होता है? 21 century skills. हम लोग बहुत सारे लोग इसमें सेमिनार किए होंगे, वेबिनार किए ना 21st century skills. उसमें बोलते हैं 21st century children how they are. Okay. हम लोग अलग अलग कैटेगरी के टीचर्स बैठे हुए हैं इधर. Someone is from 19th, someone, most of them are 19th, है ना? और बट हम लोग आजकल बच्चों को देखते हैं तो what we are feeling, because students are so energetic, first thing,
स्पेशली प्राइमरी के टीचर्स हमेशा कंप्लेन होता है बच्चे क्लास में 1 मिनट के लिए भी आराम से नहीं बैठते। इज इट? आप सोचिए आपकी क्लास कोई टीचर नहीं है या टीचर है तो भी वो साइलेंट बैठते हैं तो व्हाट यू विल फील, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट। वैसे ही क्लास होगा कभी? होगा क्या? नो। ऐसा होगा तो what it mean? What's the meaning of that? Especially I am asking this primary level teachers. What's the meaning of that? क्या होगा? शांत रहेंगे तो इसका मतलब एक हो सकता है कि जे वो लोग में कुछ डर पैदा हो गया बा कोई कारण, कोई टीचर के कारण से भी बच्चा क्लास में डर के मारे चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा बैठना है क्या? नहीं, ऐसा बैठना नहीं है। अभी हम लोग अभी प्रिंसिपल सर इधर नहीं रहते तो हम लोग का कंडीशन क्या होता है ना? This is the better. The best example is our staff room. Think about it. है ना? Yes. Okay, this is the fact. हम लोग आप सोचिए हम लोग इतने साल के हो गए हैं. This much of age we have all our experienced teachers. After all, so we cannot talk. We cannot sit in a single minute without talking. Yeah. ऐसा आप लोग बैठे तो you have some problem. Okay, that's a fact. हम लोग रेगुलरली बात करते हैं, कभी कभी बात करने का कुछ मूड नहीं है, ऐसे बैठे रहते हैं तो आपके कोलीग्स आपसे क्या पूछेंगे? What happened? What happened? Yeah. Okay, हम लोग ऐसा है तो सोचिए what will happen with the children? Yeah. हम लोग इतने मैच्योर है, हम लोग मानते हैं we are so mature. But we have this childish nature now also. Then what will happen with the children? तो हम लोग थोड़ा सा आज हम लोग इतना टॉपिक कंप्लीट करना है व्हाट इज मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन में आ जाते हैं तो सोचिए क्या है व्हाट विद दैट, व्हाट इज दैट? ये लोगों को बोलते हैं जनरेशन अल्फा। डिड यू हियर दिस वर्ड जनरेशन अल्फा? आजकल के बच्चों के बारे में बोलते हैं जनरेशन अल्फा। कैन यू से सर अल्फा का कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंस है क्या? साइंस टीचर्स हैं हम लोगों के। अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा। मनीष सर बोलिए ना। एक रेस होता है। हाँ या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बीटा भी दे सकते थे हाँ, लेकिन अल्फा ही क्यों दिए? अल्फा इज फंडामेंटल पार्टिकल जिसके पास एनर्जी होता है खुद। हाँ यस यस यस। एनर्जी का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। That is the reason in which is given generation alpha. इसमें क्या होता है? What is the condition of these children? आप लोग के सबके घर में होंगे बच्चे। कैसे कर क्या होता है? उन लोगों का क्या नेचर है बच्चों का आजकल का? They cannot live with technology. आजकल के छोटे छोटे बच्चे होंगे है ना, उन लोग भी अपने घर का मोबाइल्स होता है वो बहुत अच्छे से हैंडल करने आता है। लेकिन हम लोग के बीच में अभी भी है लोग मोबाइल को हैंडल करना ऐसा है कि नासा रॉकेट कैसे छोड़ देते हैं उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हम लोग ऐसे सोचते हैं। What is the problem in that? Why it is happen? हम लोग क्यों उसको डर, मतलब मोबाइल के साथ हम लोग ऐसे करने में क्यों डर हो जाता है? Why we are avoiding that technology? Because हम लोग सोचते हैं वो बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये बटन प्रेस करेंगे तो और कुछ हो जाएगा, हम लोग का डेटा इधर उधर हो जाएगा या कुछ डर हो जाता है। बट यू थिंक आज के बच्चे ऐसा है ही नहीं। आपका लॉक वाला एक मोबाइल एक बच्चा के हाथ में देंगे तो भी कई बच्चे इतना क्लेवर है वो बच्चा उसको ओपन नहीं कर लेते। ओपन करके और आपको सिखाएंगे इसको कैसे कैसे क्या क्या करना है। Am I right? Yes. So this is the modern education.
That means technology assisted learning है आजकल. Okay. Now I am telling you one word, mender. What's the meaning of mender? अभी आपसे हम बोल रहे हैं mender का meaning exactly right है ना? Google हो गया. So then why we are blaming our children? Because this is modern education learning. ये एजुकेशन लर्निंग का पर्पस वही है, बच्चे वही सीख रहे हैं. हम लोग भी फिर बच्चों को बोलते तुम मोबाइल टच मत कर, तुम हमेशा गेम देखते रहते हैं. तो हम लोग उन लोगों को ना ब्लेम करने से नहीं होगा. क्या करना पड़ेगा, हम लोग उसके साथ थोड़ी कोविड के टाइम में भी ऑनलाइन क्लासेस लिए. ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते. Why? Because continuously you are giving lectures. Lecture continuously देंगे तो अभी now it's only the 10 minutes. अभी हमें 30 minutes तक आपको ऐसे लेक्चर देते ही रहेंगे तो आप सोचना, आप लोग का थिंकिंग ऐसा हो जाएगा कब खत्म होगा ये. Isn't it? नेचुरल है. तो आप 45 मिनट्स क्लासेस में जाके बच्चों को कंटिन्यूअस डिलीवरी देते ही रहेंगे तो क्या फीलिंग होगा? पेशेंट पावर हाउ मच? 10 to 15 मिनट्स. अभी हम लोग ये सोचे नहीं, हम लोग ये सब नहीं सोचते. We are going to classroom and after that what knowledge you have, that all knowledge you are unloading into the classrooms. वो भी एक नहीं, एक टीचर जाके ही करते हैं. लोग सब क्या अच्छा हो जाएगा? Nothing. It's not happen now. It's not at all happening. Okay. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? छोटे बच्चों के बारे में बोल रहे हैं. यंगस्टर्स में 30 मिनट्स तक होता है. एडल्ट में तो इतना ही है कैलिबर उन लोगों में. तो आप ये कोशिश करके देख लीजिएगा क्लासरूम में इतना ही होगा बच्चों के बीच का. 10 to 15 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं होगा. तो इसके बीच में हम लोग ओके. Then technology assisted learning, that is the modern education का first part हो गया. Second one is learner centric. ये क्या होता है learner centric? Can you say anyone what is learner centric? Based on interest of learner. Okay. Centric means Yes. बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें कंप्लीट प्रोसेस के बीच में चाइल्ड होता है. हर एक जो भी प्रोसेस हम अपनाते हैं वो सारे बच्चे के लिए होता है. उसको ध्यान में रखकर ही कोई शिक्षण प्रणाली या कुछ भी अपनाया जाता है. Okay, okay, okay. Thank you, sir. Or anyone? Ma'am, education हाँ. from the point of view of learner or the student. हाँ. Point of view through the learner. मतलब learner centric का मीनिंग क्या होता है? पहले क्या होता था? अच्छा, हम लोग बहुत पुराने लोग हैं, हम भी वही स्टडी किए हैं. क्या करते थे? आजकल क्या हो गया है? सब्जेक्ट इज चेंज. हम लोग को कुछ चीज बच्चों को करने के लिए भी देते हैं. आप लोग क्या क्या देते हैं क्लास में? क्लासेस में बच्चों को करने के लिए क्या देते हैं? एक्टिविटीज देते हैं. यस, प्रोजेक्ट देते हैं, डिस्कशन करते हैं. लैंग्वेज टीचर्स है तो सर क्या देते हैं? सर लैंग्वेज टीचर्स Copy based question answers to work it out or to write it down. टॉपिक अदर देन टॉपिक आप क्या करते हैं? हाँ यस, कुछ समाज से संबंधित ऐसी गतिविधि देते हैं जो अपने वो मन से कर सके. करेक्ट. दैट इज द मीनिंग ऑफ लर्नर सेंट्रिक. पहले ऐसा नहीं था. बच्चे हम लोग टीचर आके हम लोग के क्लास में जो बताते थे, पढ़ाते थे, हम लोग उसको सीख लेते थे और हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होता था उस समय.
मैं राइट? हम लोग को ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता था। आजकल के बच्चे ऐसा है क्या? नहीं। ओके ओके, आप लोग रेन, फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल, छोटे बच्चों को रेनफॉल कैसे, ईबीएस के टीचर कैसे पढ़ाते हैं मैम रेनफॉल? बच्चे क्या बोलते होंगे रेनफॉल के बारे में? ये टॉपिक पढ़ा है क्लास में रेनफॉल? ओके, एनीवे अभी हुआ, मतलब आपको नहीं पता। कोई एक्सपीरियंस ऐसा रेनफॉल आप पढ़ाते समय बच्चे क्या पूछते हैं आपसे? कुछ पूछते हैं? Ma'am, it's like they answer why this occurs, how the water gets vapored, yes. how it gets vapored up. We cannot see it. Correct. We can see the rain, we can see the cloud, how it gets vapored. Exactly right. बच्चे ही पूछते हैं। When you have to explain आप what बोलते is हैं happening, नीचे से वाटर वेपर इज मूविंग अपवर्ड। बच्चे पूछते हैं कैसे अपवर्ड जा सकते हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं, है ना? दिस इज द फैक्ट। लेकिन हम लोग भी स्टडी दे आर रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी। हम लोग सोचते हैं बच्चे पढ़ने के लिए इधर आते हैं तो बच्चों के मन में कुछ भी नहीं है, दे हैव सम आइडिया। हम लोग सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ाते हैं तो वी वेरी बिग, देन दे आर कमिंग, और उसके बाद उसमें रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा भी चेंज करके बोलेंगे ना, बहुत जल्दी से वो पकड़ लेता है और उसके बाद पूछते हैं ऐसा नहीं है, वो ऐसे दिया हुआ है। बोलते कि नहीं बोलते? नहीं है। They filled something, some information is already filled in them. हम लोग का रोल क्या है? हम लोग का रोल होता है as a facilitator. What is the role of us? As a facilitator, we have to change the information to knowledge. Don't think that they don't know anything. They know. वो इंफॉर्मेशन लोगों के अंदर है, वो इंफॉर्मेशन को हम लोग को क्या करना चाहिए? नॉलेज में कन्वर्ट करना है। That is the role of us. ठीक है? तो that is the 21st century children का कैरेक्टर यही है। इसी कारण से हम लोग को ऐसे फॉलो करना है। ये क्या होता है? फर्स्ट हो गया हम लोग का टेक्नोलॉजी लर्निंग, सेकेंड वन इट इज लर्नर सेंट्रिक, थर्ड वन इज क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग? अविश्वसनीय सोच। Okay. Any another? Any another answer? The thinking behind the imagination. Correct. The part of evaluation actually. Sorry? The part of evaluation. Evolution. The part of evaluation. Evaluation. The part. Evaluation. Yeah. Critical thinking we are giving to children to write. क्लास में भी हम लोग ये कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या कर सकते हैं? शायद हम लोग सेकेंडरी लेवल में देते हैं बच्चों को, बीच में देते हैं एक टॉपिक हम लोग दे देते हैं और उसके बाद बोलते हैं उसके बारे में सोचो, एक ग्रुप बना देते हैं, है ना? ग्रुप बनाने के बाद हम लोग बोलते हैं बच्चों को तुम्हारा टॉपिक ये है, तुम्हारा टॉपिक ये है। इसके बारे में लोग क्या करते हैं? बीच में आपस में बात करते हैं, बात करने के बाद बोलते हैं कुछ पॉइंट्स उसमें बना। ग्रुप में काम करते हैं तो बच्चों का क्रिएटिविटी इंक्रीज होता है। आई एम नॉट टेलिंग, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। व्हाई? बिकॉज सर डायरी है ना? डायरी नहीं है तो डायरी नहीं है तो पेपर दे दीजिए। डायरी है आप लोग के पास पेन नहीं होगा? ध्यान में नहीं है, जल्दी
टाइम बचा माइक्रोस्कोपिक वाह वेरी गुड क्या बना वेरी गुड गुड है आपका सर ऐसे कैसे हो गया सर मैम ड्रेस दिखता नहीं, हम लोग ड्रेस दिखा पर ड्रेस दिखता तो नहीं है ना। भाई वेरी गुड सर सर में सर तो दिखता ड्रेस नहीं दिखता। हाँ एग्जैक्टली वेरी गुड आप लोग एवरीवन सन इज डिफरेंट लेकिन हर दिन तो exactly right it's a good imagination he's right है ना Actually, explain about traveling of light. हाँ yes there is some science in it okay so Scientific science. very good तो यही है this is happen in your classes also आप एक ही क्लासरूम में जाते हैं तो हम एक जैसा ही पढ़ाते हैं उसके बाद हम लोग निकल के क्या बोलते हैं कुछ भी समझ में नहीं एक स्टूडेंट्स आर डिफरेंट अभी डिफरेंशिएशन दिस इज नॉट एज डाइवर्सिटी क्लासरूम इज डाइवर्जेंट दैट इज डाइवर्सिटी है क्लासरूम में आपको डाइवर्सिटी मिलेगा क्लासरूम में मिलना तो चाहिए okay and here also we can see the diversity सन तो एक जैसा ही है बट आप ड्रॉ किया तो अलग ओके नो वन इज सेम वैसे ही है हम लोग क्लास में लेकर थिंकिंग में अलग है किसी का भी आंसर एक जैसा नहीं आएगा इसलिए बोलते ग्रुप में हम लोग डिफरेंट इसको हम लोग कोलैबोरेट करेंगे तो क्या क्या आया अभी मनीष सर बोल रहे थे हम लोगों को रेस दिखाई नहीं देता है ओके कई लोगों को रेस दिखाई दे रहे someone sun is smiling also isn't it yes this is the creativity I think in the center sun that means it should understand this is sun don't be confused isn't it हम लोग उससे भी छोटे हैं ना बच्चे मतलब they are behaving like adults but they are children okay so behave with them as a child हम लोग को भी थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर लेके जाना ही पड़ेगा क्लासरूम में ठीक है ये बहुत जरूरी है especially I think primary classes isn't it yes right नहीं तो हम लोग से हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है आई थिंक सबसे ज्यादा हार्डवर्क प्राइमरी टीचर्स ही करते हैं बिकॉज एक छोटे बच्चों को हैंडल करना मतलब is that congratulating work isn't it okay next is collaborative approach means both are interrelated with the collaborative approach okay next is okay देखिए सेकंड पॉइंट हम लोग का क्या है एंशिएंट एंड मॉडर्न एजुकेशन आप लोगों में कितने लोग अभी भी चाहते हैं पुराना एजुकेशन अच्छा था हाथ उठाइए तो पुराना एजुकेशन स्टडी फ्रॉम एंशिएंट एजुकेशन इज बेटर देन मॉडर्न एजुकेशन बाकी सभी लोग मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं वेरी गुड तो हम लोग का एजुकेशन भी वैसे ही होना चाहिए हम लोग को मॉडर्न है बोलने से थोड़ी ना होगा एजुकेशन का लेवल भी व्हाट मॉडर्न एजुकेशन को हम लोग फॉलो करते हैं आप लोग सभी लोग बोले मॉडर्न एजुकेशन को आप पसंद करते हैं तो व्हाट पॉलिसी यू आर
Introduce him in the classroom. Anyone, please? This was the terminology to the students. Because you are a computer teacher, you don't have any way. Okay, you must have to follow it. I am asking you the language teachers. Okay, sir. Best friend. लाइब्रेरी में हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? मैम ई बुक के थ्रू कर सकते हैं। ई बुक से कर सकते हैं स्मार्ट क्लासेस पे। क्योंकि अभी ई बुक आया तो मैं भी से लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उसमें। और बुक्स जितने भी हैं वो एक्टिविटी बेस्ड है। ओके। आपके लाइब्रेरी में कितने बच्चे रीडिंग करते हैं? हार्डली मैम। Listen, how many students are coming in the library? I think from one section 30-35 students. Yes, ma'am. 30 about the e-books. Okay, technology based. So in that हम लोग के बीच में कितने लोग अभी भी बुक्स रीड करते हैं? बुक्स रीड करके कितने लोग पढ़ाते हैं? मतलब क्लासरूम में नहीं, बुक्स रीड करते हैं। क्यों? आप लोग ईद करने में क्यों नहीं फॉलो करते हैं? दोनों में से कंपैरिजन दोनों। Yes, there is some reason. है ना? Yes. लेकिन I am frankly telling you, ई कंटेंट से भी हमको ज्यादा पसंद बुक्स रीड करना है। इसमें कौन सपोर्ट कर रहा है? प्लीज यस देखिए, ई बुक से भी ज्यादा रीड द बुक्स। दैट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। एंशिएंट एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग ना रीडिंग को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन आजकल वो कैपेबिलिटी कम हो गया है। दैट इज द रीजन इन विच बच्चों में मेमोरी पावर रिड्यूस हो गया है। पहले से हमने बोल रहे ये भी रिसर्चर्स ने, बिकॉज नाउ ओनली आई विल डिस्कस दैट लर्नर्स आर यूनिक। सभी लोग एक जैसा नहीं है। अभी आपको लगेगा, हम अभी बोल रहे थे मेमोरी पावर कम है। आप 100 स्टूडेंट्स को लेंगे तो उसमें से 50 स्टूडेंट्स का मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है। हम लोग एक क्लास में जाते हैं, 30-35 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो अभी बोल रहे थे 10 to 15 मिनट्स कंसंट्रेशन पावर है कंटिन्यूअस क्लास में। आपका क्लास वेरी फ्यू मीन्स हाउ मेनी? 5-6 वाह, वेरी गुड। 5-6 is a great number. Hardly 2 to 3 or 5 years first class. Students? No. तो हम लोग रोटेट करने से कुछ फायदा नहीं है। We have to cope up with the situation. लोगों को भी इन्वॉल्व करके, I am also facing the same problem. इतना ज्यादा कॉप अप करने जाएंगे तो हम लोग को फिर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, बिकॉज वी ऑल आर हैविंग बर्थडे। क्या हो जाता है कि बाकी चीज भूल जाते हैं, क्लासेस में क्या कराना है, कैसे होता है, बच्चों का आइडेंटिटी कैसे होता है, बच्चे क्या करते हैं। अभी हम लोग का पेरेंट्स मीटिंग चल रहा था, तो मैनेजर हम लोग को बोल रहे थे एक बच्चों का साइकोलॉजी पढ़ना है। आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू, कई बच्चों का नाम तक पता नहीं। दिस इज द थिंग, दिस इज अ फैक्ट। Easier to say but tough to do. लेकिन सबसे खतरनाक बच्चों का नाम क्या है? सबसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बच्चों का नाम याद नहीं है तो भी बहुत इरिटेटिंग स्टूडेंट्स का या डिस्टर्ब करने वाले बच्चों का नाम जरूर याद होगा। पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं? चुपचाप बैठ के पढ़ाई करते हैं, उन लोगों का नाम याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं। आप उसको वो बच्चों को आप कहीं भी ले जाकर बिठाइएगा तो भी they can learn, they will learn. But आजकल में बोलते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग जॉब क्या है? मैच्योरिटी पहले से भी है, ज्यादा है। हम लोग सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं तो
लोग पढ़ रहे हैं डिग्री लेवल में, तो मेंटालिटी उतना ज्यादा है। समटाइम्स आई एम थिंकिंग मैं तो उस लेवल तक आई ही नहीं। दैट इज द टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट्स वही है। बोथ आर देयर बेनिफिट्स एंड उसको मिसयूज भी कर रहे हैं। कैसे समझ में आए? That we have to, that is some guidance we have to give in the classroom as well as to the parents also. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पेरेंट्स को इसका अवेयरनेस देना है पहले। सेकेंडरी, that means I mostly I know connecting with that section, that's why I'm telling you. बच्चों के पास बहुत महंगा मोबाइल होगा, वो यूज भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या क्या उसमें वो कर रहे हैं, पेरेंट्स को पता नहीं है। इसी के साथ इन लोगों के ब्रदर सिस्टर्स भी होंगे, वो साथ में बैठ के ही ये सब देखते हैं, ये इसको फॉलो करते हैं, तो वो बच्चा भी वही सीख रहा है। चाहिए हम लोग इतना भी अवेयरनेस होना चाहिए हम लोगों में, मतलब क्या देखना है क्या नहीं देखना है, लोगों में ये एक अवेयरनेस डाल देना। कितना हर दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में सब बहुत सारा क्राइम्स हम लोग देखते हैं, लेकिन ये रिड्यूस नहीं हो रहा है। डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग। तो लोगों को बोल बोल के डराना नहीं है, थोड़ा सा हिंट लोगों के माइंड में डाल के देना है, दिस इज हैपनिंग। कई लोग बोलते हैं उसको देखना नहीं, उसको सुनना नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को ये सुनना भी चाहिए, इसके बारे में मालूम भी होना चाहिए। अब आई थिंक 5th 6th 7th क्लास में एक चैप्टर दिया हुआ है, क्या था चैप्टर का नाम? साइंस, ईवीएस में है शायद, साइंस में है, बैड टच एंड गुड टच। ये ना कौन सी उस चीज को ना बहुत अजीब टाइप में उसको अप्रोच करते हैं। वाई? चिल्ड्रन का चाइल्ड का एक फर्स्ट फ्रेंड आप लोग भी होना चाहिए। उसके बाद है टीचर्स। कई बच्चे बोलते हैं, थोड़ा सा भी क्लोजनेस आने से बच्चे कुछ कुछ चीज बोलते हैं, भी अपना पर्सनल मैटर किसी के भी सामने ओपन अप नहीं करते हैं बच्चे। प्रॉब्लम है बच्चों को शेयर करने के लिए कोई नहीं है। दिस इज द मेन पार्ट। बिकॉज ऑफ दैट रीजन चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने जो चीज होता है अपने माइंड में रखते हैं। स्पेशली एडोलेसेंट स्टेज में आ जाते हैं तो बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होता है, वो सबसे ज्यादा शो करते हैं गर्ल्स में। अपने मन में कितने भी क्वेश्चंस होता है, वो क्वेश्चंस बच्चे फ्रैंकली बोलते हैं, पेरेंट्स से हम लोग नहीं बोलते। There is the presence of a mother. By she or he cannot share with you. उतना भी कनेक्शन नहीं है, होना चाहिए, है ना? तब क्या करते हैं बच्चे, जाके फ्रेंड से पूछते हैं, नहीं तो वो क्या करेंगे, अभी आप लोग बोल रहे थे यूट्यूब में ढूंढेंगे, नहीं तो गूगल में ढूंढेंगे। तब उधर बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, जो अपने से ठीक लगता है, दैट ही or she is learning। उसके बाद वो किसी से शेयर नहीं करते, किसी से पूछते भी नहीं है। तो उस समय लोग बोलते हैं फ्रैंकली, बॉयज भी बोलते हैं, गर्ल्स भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन नॉट एट ऑल शेयरिंग देयर डेली रूटीन विद देयर पेरेंट्स। इट्स नॉट फेयर, ओके, नॉट फेयर। सो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग पेरेंट्स हैं और टीचर्स में भी आप लोग करके बिगाड़ना नहीं है, काउंसलिंग करके बिगाड़ना नहीं है उस मैटर को। काउंसलिंग करना चाहेंगे तो आप किसी को भी फोर्स करके पूछ नहीं पाएंगे, आप बोलिए बोलिए करके नहीं बोलना है। If she or he wants to tell you
She will share with you. Otherwise, leave. You can't. वो भी एक क्राइम है आजकल, पनिशेबल है। तो ये चेंजेस में है ना, इसलिए बोलते हैं स्कूल्स में एक काउंसलर होना चाहिए। हम लोगों को भी कभी कभी काउंसलिंग चाहिए, बहुत जरूरी है। मे बी दैट इज द रीजन इन विच ये हम लोग को कुछ ये ट्रेनिंग सब देते हैं बीच बीच में, लेकिन हम लोग इसको क्या मानते हैं, फालतू का चीज है ऐसे ही। लेकिन एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आ गया है। पहले टीचर सेंट्रिक था, टीचर पढ़ाते हैं, वो बच्चों को पढ़ना है। गुरुकुल से भी आगे बोल रहे हैं बात, 17, 18, 15 उसी सेंचुरी का बात बोल रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर मॉडर्न है, बहुत वास्ट चेंजेस है आजकल के बच्चों में। अगर आई टोल्ड यू एंशिएंट में और अभी में बहुत सारे चेंजेस। अभी बोलते हैं प्राइमरी में गेमिफिकेशन, आप लोग कई लोग इसमें सेमिनार अटेंड किए होंगे, वेबिनार में क्या बोलते हैं उसमें, गेमिफिकेशन इन लर्निंग। हाँ, थ्रू लर्निंग। इसलिए बोलते हैं कि गेम से थ्रू सिखाइए। हम लोग अभी भी मल्टीप्लिकेशन का टेबल सिखाते हैं, लेकिन उसको भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। आप लोगों को छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए पजल्स होता है। हम लोग के नीचे स्टाफ रूम में एक अलमारी है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो बीच बीच में ये सब ले जाकर टेबल में डाल के दे दीजिए, बोल दीजिए इसको फिलअप कीजिए, जरूर बच्चे थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा। तो ये ऐसा एक्टिविटीज हम लोग को ढूंढ के निकालना है, और उसके बाद उसी से थ्रू हम लोग कोलैबोरेट करके बच्चों का एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के लिए कोशिश कीजिएगा। That is a simple request. Next topic is our challenges. Modern education is okay. What are the challenges we are facing now? The first is our mind setting. दुनिया कुछ भी होने दो, हम लोग को उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। I won't do that. स्कूल में ऐसे होता रहता है, not need to do that. अभी हम लोग कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस लगाए थे। शुरू में frankly asking you, शुरू में कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ था? हाथ उठाइए तो प्लीज। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। Someone is, it's not a defect, sir. But now we are so familiar with that. वीडियो का मतलब वीडियो अपलोड करना, अभी हम लोग बहुत सारी चीज, एक्चुअली इट वाज ए गुड टाइम आई थिंक। इसी से थ्रू बहुत सारा चीज हम लोग सीख लिए। शुरू में तो नहीं था, पता नहीं था क्या नाटक उसमें किए हम लोग, है ना। मतलब पहले तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, फिर उसके बीच में हम लोग वीडियो डाल दिए तो वीडियो तो जाता नहीं है, फिर हम लोग क्या किया, कंप्रेस किया उसको। ये सब सीख रहे ना हम लोग, और ये नहीं पता वीडियो तो मतलब आप लोग वीडियो कर दिए, लेकिन वीडियो कहाँ गया ये नहीं पता। मोबाइल पूरा ढूंढ रहे, वीडियो कहाँ गया पता नहीं, फिर इसको कैसे सेंड करेंगे ये नहीं पता, पता है। और उसके बाद हम लोग अभी ऑनलाइन का क्लासेस ले लिए, कैसे हम लोग को ऑनलाइन में बच्चों को ज्वाइन कराना ये नहीं पता था शुरू में, है ना। यस, ज्वाइन कराना है हम लोग को नहीं आता था, कैसे ज्वाइन कराना है, अब ये भी हो गया है। So what we learned something. टेक्नोलॉजी हम लोग भी लर्न कर चुके हैं अभी। ओके, तो माइंड से फिक्स रहने से ये टेक्नोलॉजी हम लोग सीख नहीं पाते, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ओपन माइंड रखना है। जनरेशन किस तरफ जा रहे हैं उसी के साथ हम लोग को भी आगे जाना है। So that will be next is flexibility. एक टीचर का सबसे अच्छा क्वालिटी यही है,
फ्लेक्सिबल कुछ बोल देते हैं, बोलेगा ही। छोटे क्लासेस में जाते हैं तो आप लोगों से कभी कभी बच्चे पूछते हैं, मैडम सभी लोग बिंदी लगाते हैं, आप लोग बिंदी क्यों नहीं लगाते? पूछते हैं ना? तो आप उस समय गुस्सा होकर बोलेंगे ये तुम्हारा काम है क्या, हम बिंदी लगाए या नहीं लगाए? तुम ये सब पढ़ने के लिए आते हैं ना, तुम ये सब देखते हो, ऐसे गुस्सा करते हैं। तब आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं मैम? कौन है तो कल से लगा कर आएंगे। हाँ, very good, very good. This is the matter. Correct. कल फिर पूछ दिया तो। Correct आती है। तो वो बच्चा उनसे पूछ रहे थे, मैम सभी टीचर्स लिपस्टिक लगा के आते हैं, आप लिपस्टिक क्यों नहीं लगाते हैं? है ना? पूछते हैं। इसमें से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? बच्चों को कॉस्मेटिक्स के साथ बहुत ज्यादा लगाव है, यही समझ में आ रहा है? नहीं, क्या समझ में आ रहा है? शिक्षक से लगाव है। नहीं। हाँ, This is the matter. Students are observing us. Students are observing us. तो हम लोग ऐसे रहना चाहिए ना। स्टूडेंट्स आपको देखते हैं, रस्तक बच्चे नोटिस करते हैं। इसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी में सभी बच्चे नोटिस करते हैं। आप नया ड्रेस पहन के आते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, सर नया है। हाँ यस, प्राइमरी में थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, बर्थडे है क्या? यही बात है। स्मार्ट हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सही है सर। तब आपको खुशी आता है कि नहीं आता है सर? सिंपल सा ब्रश करके निकल देते हैं। करेक्ट है ना? यस, दैट इज यू आर फीलिंग हैप्पी। तो आप इतना भी मोटिवेशन बच्चों को क्यों नहीं देते हैं? करेक्ट है? बच्चों को ऐसे ऐसे कभी कुछ हो जाता है तो बच्चों को लेके थोड़ा मतलब आपके फ्रेंडों में लेके आइए, एक लैब करा दीजिए। कभी कभी बच्चे कोई भी आंसर नहीं देते तो भी 1 or 2 स्टूडेंट्स गिविंग सम आंसर्स। बीच में मंथली एक बार उन लोगों को एक टॉफी दे दो। हम लोग असेंबली में कराते हैं। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन कराते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग नहीं कराते सर, बहुत बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन क्लासेस में बच्चों को हम लोग एनकरेज करते हैं। हम तो बोर्ड पर लिख ही देते हैं हैप्पी बर्थडे। यस, तो लोग पूरे दिन एक टीचर आते हैं तो उन लोग क्लैपिंग करते ही रहते हैं, उसमें हो ही जाता है मोटिवेशन। तो हम लोग हर चीज बच्चों, हम लोग को इतना खुशी आ जाता है तो बच्चों में भी खुशी आएगा। तो ऐसे कुछ चीज को इन लोगों को मोटिवेट कीजिए। और कई बच्चे आपको टॉफी ये सब देते हैं तो आपके बैग में पड़ा ही रहता है ना? तो ऐसे कभी कभी उन लोगों को भी दे दीजिए, अच्छा हो। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हम तो बहुत पुराने टीचर है बोल के हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आई एम द एक्सपीरियंस वन, ये सब सोचने से नहीं होता है। क्लास में हम लोग जाते हैं तो उन लोग जैसा ही रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। असेसमेंट का मीनिंग अभी हम लोग को पता ही है। असेसमेंट हम लोग बहुत सारा करते हैं। क्वेश्चन में क्या चेंज आया है पहले से भी? क्या क्या चेंजेस आ गया अभी क्वेश्चन में? क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है आजकल, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है ना? आपको मालूम होगा आजकल एक क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। सभी चीज क्या होते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग है। एक पैराग्राफ देने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चंस देते हैं, है ना? एक पैराग्राफ देने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तो वो बेस में क्वेश्चंस उन लोगों को बनाने के लिए देते हैं।
और बन जाता है तो उन लोगों से तो वो हो गया असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब इवैल्यूएशन, इस टाइप ऑफ असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? इवैल्यूएशन। आजकल का इवैल्यूएशन का मेथड बेस्ड ऑन द मॉडर्न एजुकेशन इट इज चेंज्ड। Both is different. Evaluation and assessment is different. Okay, what is the difference, sir? Please tell. Evaluation for giving achievement marks, but assessment is done after period of time, during class, before class. That is the assessment. Yes. But its the meaning is we can evaluate through the assessment. Evaluation is the final result. Yeah. Okay. So through the assessment we can evaluate the child, how much thinking capacity they have. Okay, critical thinking and how they can think it. How many students can attend that process. Okay. ये सभी में assessment में बहुत बड़ा हम लोग का अभी हम लोग करके मतलब कोविड टाइम का खत्म किया था ऑनलाइन टीचिंग। इसके बारे में कुछ बोलना है ही नहीं, हम लोग को बहुत सारा कनेक्शन है इसके साथ। ऑनलाइन टीचिंग में क्या क्या चैलेंजेस है? मे बी यू फेस इट। First, data. Network. This is right. The first problem we face. And the most important thing that this is one-way communication. करेक्ट। दिस इज ओनली एंगेजमेंट नहीं हो रहा है, लोग एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए ये ऑप्शन है आप लोगों के पास, एंगेज कैसे कर सकते हैं? Both sides the connectivity should be strong. That's मैम ब्रेक ले लेके बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे सर, इंटरेक्ट करेंगे। और उनको तो अभी हम ये comment box में सेमिनार answer खत्म दे करके दीजिए। आप लोग से क्वेश्चन पूछे नहीं जैसे मैं आपको जैसे कह सकते हैं कि आप चैट बॉक्स में कुछ रिप्लाई करो इस तरह का, तो जैसे मान लीजिए पढ़ा रहे हैं उस बीच में अगर कुछ बातें हम कर रहे हैं उनके साथ तो कमेंट बॉक्स में उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, बच्चे उड़ूल भी कुछ करने लगते हैं, कुछ बाहर के बच्चे भी आ जाते हैं, लिंक शेयर कर लेते हैं, तो नहीं वो तो बहुत उसका आप बड़ा कर दीजिए ना, इसका तो वही ये सभी प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। इसमें कनेक्टर बहुत सारा लोग आया था ना, बच्चा तो ऐसे बैठे रहते हैं, पीछे से कई लोग घूमते रहते हैं। बोलते क्या है, मेरा नेटवर्क अच्छे से काम नहीं चल रहा है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है हाँ, तब बच्चे ऐसे रुक जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो रिप्लाई नहीं आता है। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद बोलते हैं मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। किसी को मोबाइल का प्रॉब्लम है, कुछ एक्टिविटी, गेमिंग एक्टिविटी दे दीजिए। आई ट्राई दिस, ओके। मेंडीमीटर करके बीच में हम लोग का एक सेमिनार आया था, तो उसमें दिखाए थे, तो मेंडीमीटर का एक ऐप है, वैसे हम ढूंढे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आ रहा था, तो उसको 2-3 बार मैंने ट्राई किया, तो 10th क्लास के बच्चे पूछने लगे आज टेस्ट है या नहीं है। ऐसे ही करके बच्चों में हम लोग एंगेज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं था, मतलब हम लोग गेमिंग कराते हैं ना बच्चों को, वैसा वाला गेमिंग वाला प्रोसेस था उसमें। सो इंटरेस्टेड इन दैट, हम लोग को भी वैसे कुछ करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी बेस में, ठीक है। नेक्स्ट एंगेजमेंट था, द लास्ट वन इट इज मतलब थोड़ा सा लर्निंग कर्व होता है, क्लासरूम में भी होता है, स्टेबल रहेगा सबका लर्निंग पावर, नॉट एट ऑल, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। यही बात है आप लोग अभी बोल रहे हैं, आधे बच्चे तो ज्वाइन होता है, आधे बच्चे किसी और को लेके आते हैं, तो ये सब चलता है। लर्निंग कर्व डिफरेंट है। कई बच्चे क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाते हैं तो दे कांट कैच, ऑनलाइन व्हाट दे विल लर्न, ओनली द मैटर इज दे विल डिस्टर्ब यू। बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता था उस समय। कभी कभी क्या लगाते थे, गाना लगाते है ना, कितने बार भी फिर हम लोग को म्यूट कराना पड़ता था। उसी में 1 मंथ चल गया हम लोग को म्यूट कैसे करना है ये सीखते हुए, है ना। बहुत डिस्टर्ब करते थे, छोटे बच्चों को पता नहीं ये सब होता कि नहीं होता था। हायर क्लासेस में कई बच्चे करते थे ऐसे ही,
और उन लोग तो फिर म्यूट करा के रखना, फिर उन लोगों के पीछे फिर कंप्लेन करना, ये बहुत सारा मैटर। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व सभी का एक जैसा नहीं होता है। लर्निंग कैपेसिटी कई लोगों का ज्यादा है, कई लोगों का मीडियम है, कई लोगों का बहुत नीचे। मीडियम वाला भी थोड़ा बहुत तो सुनेगा, टॉप वाला तो सुनेगा, है ना? तो यही है लर्निंग कर्व। तो इतना चैलेंजेस है हम लोगों का इस मॉडर्न एजुकेशन में। हैव यू एनी क्वेश्चन? इस टॉपिक्स में से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ नहीं क्वेश्चन? इसमें हम लोगों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है और उद्योगों के क्षेत्र में जैसी आवश्यकताएं हायर करने वालों की होती है और जो शिक्षा प्रदान की जाती है और वहाँ हायर करने वालों की इच्छा उससे जो रिलेटेड होती है, वो दोनों में गैप पाया गया। हाँ, एक्सैक्टली राइट सर। ये गैप को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे? वहाँ जो आवश्यकता है वह फुलफिल एजुकेशन क्या आवश्यकता होगा? नहीं है। We should need some training. How CBSE training क्यों कंडक्ट करा रहे हैं? अभी के ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये आधे से ज्यादा लोग हमको समझ में नहीं आ रहे क्यों लोग ये कर रहे हैं। पढ़े हैं लेकिन वो है कि वह गुने हुए नहीं, माने जो We are not applying sir. We are not applying. That I told you, mindset हम लोग को वैसे रखना चाहिए। ओपन माइंडसेट रखिए। किसी भी जनरेशन के साथ कॉप अप करने का एक कैलिबर हम लोग में होना चाहिए। इसी कारण से उसके साथ हम लोग के स्कूल में अलग अलग टीचर्स है, कंप्यूटर है, लाइब्रेरियन है, सब्जेक्ट टीचर्स है, सोशल साइंस है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट है। ये सभी सब्जेक्ट कैसे हैंडल करना है ये एक आर्ट है। तो फिर हम लोग क्लास में जाने के बाद बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, बोलने से नहीं होता है। सम डिफेक्ट इन विद अस आल्सो, वो हम लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मेरे क्लास में बच्चे बैठना नहीं चाह रहे हैं तो दैट मीन्स आई हैव सम डिफेक्ट। अब उन लोगों के साथ नहीं हो पा रहा है, कॉप अप नहीं हो पा रहे। आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट फॉलो देम। ऊपर से हम लोग ये नहीं बोल सकते बच्चे खराब है। बच्चे बच्चे हैं, दे आर द चिल्ड्रन। तो हम लोग उसके साथ कैसे मतलब टॉलरेट करके जाएंगे उसके बारे में हम लोग को थिंकिंग करना है। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। थ्रू दिस ट्रेनिंग ओनली वी कैन डू दिस। ओके, so I am concluding here the topic challenges of modern education. I am thankful for the management or all the management committee members and give me a chance to stand in front of you. I am thankful to all, full cooperation of you all people. Thank you very much. Thank you. For your valuable information on the topic challenges of modern education. Definitely time to time in our classroom, in our day-to-day life, whenever we are interacting with the students inside the classroom, we will try to apply and adopt all these things. And I am thankful to our management, especially the special credit and thanks goes to our respected principal sir, because of his time-to-time supervision, spontaneous cooperation in conducting this kind of informative programs and to help the teachers to this kind of programs. It will be continued. And last, the thanks goes to our all the experienced teachers, those who are spending their valuable time with us. And thus they have learned something else. With that, we would like to conclude this program. Thank you a lot.